Good morning, students. How are you? I know you are well. So without delay, we are going to start our chapter. It means formula and function in MS Excel 2013. So लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि सेल एड्रेस के बारे में, फॉर्मूला को यूज करने के लिए और फॉर्मूला को कॉपी करने के लिए। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे अपने फंक्शंस के बारे में कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और वो फंक्शंस हमारे किस तरह से वर्क करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और वो फंक्शंस हमारे कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि बिना फंक्शंस के हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम को आसानी से रन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं हम लोग फंक्शंस के बारे में। Functions. There are some predefined formula in Excel for which instructions are already given. All that you need to do is select the predefined formula, give data, and Excel will automatically use its defined instruction to calculate the result. These predefined formula are known as function in Excel, and the data entered while using a function is known as functions argument. A step to instruct functions are given. So step 1, click the formula tab. Second step, click on the insert functions tool. Third steps, click here to open the category drop down list. Fourth, select the category from which a function is to be inserted. Now fifth, select a function from a list. After that, click on OK to open the function argument dialog box. The function argument are defined for different functions. Functions argument are given in a round brackets after a function definition. This is equal functions name. Function argument. You can also insert function from the drop down menu of a different category such as for math and trick, and more functions. Statistical locations in the functions library group on the formula tab. So here is so many functions. So you can see that the figures functions, math, trigonometry and etc. तो अभी हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा और देखा भी आप लोगों ने कि फंक्शन जो होते हैं वो प्री डिफाइंड बने हुए फॉर्मूला होते हैं जिसके द्वारा हम लोग आसानी से कोई भी अपने वर्क को कर सकते हैं। बस हमें अपने डाटा को एंटर करना है और वो फंक्शंस हमारा ऑटोमेटिकली काम करता जाएगा, क्योंकि बिना फंक्शंस को क्रिएट किए हुए, बिना फंक्शंस को बनाए हुए हम लोग कोई भी डाटा को इनपुट नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हमें कोई लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसके लिए हमारे वो फंक्शंस पहले से क्रिएट होते हैं। बस हमें अपने डाटा को इंटर करना है और वो सारे फंक्शंस हमारे वहां पर वर्क करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ स्टेप्स भी बताया था कि किस किस तरह से हम लोग अपने फंक्शंस को यूज करेंगे। तो उन स्टेप्स को हम लोग आसानी से फॉलो करके हम अपने जितने भी फॉर्मूलाज और फंक्शंस है उनको हम लोग आसानी से ला सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक फिगर भी दिखाया था कि कौन कौन से हमारे फंक्शंस होते हैं मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री के। तो कभी भी अगर हमें किसी भी फंक्शंस को अलाउ करना होगा तो हम स्टेप फॉलो करेंगे और उस स्टेप के द्वारा आसानी से हमें वो सारी चीजें मिल जाएंगी जिनको हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो आप लोग भी आराम से इसे कर सकते हैं। अपने इस वीडियो में आप लोगों ने आराम से देखा कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो वो फंक्शंस आप लोग आराम से यूज करिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में कि वो कैसे यूज करते हैं और वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। Math and trig function. ABS. Return the absolute value, i.e. the modules of the supplied number. Sign. Return the sign plus and minus or zero of number. GCD. Return the greatest common divisor of two or more number. LCM. Return the least common basic mathematical operation. Sum of list of number. Product. Return the product of list of numbers. Power. Return the result of a given number raised to the power. SQRT. Return the positive square root of given number. Quotient. Return the integer portion of division between two numbers. Mode. Return the remainder from the division between two numbers. Aggregate. Perform a specific calculations, example sum, product, average, etc. It lists our database within the option to ignore hidden row and error value. Absolute. Subtotal. Perform a specific calculation, example the sum, product, average, etc. from list supply set of values. Now there is auto sum. There is facility in Excel for the commonly used function sum of
average, count, max, minimum. For this, enter the data in a single row or single column. In the case of data entered in a row, click on the cell to right of the list data entered. In the case of data entered in a column, click on the cell below the last data entered. Follow are the steps given to use assume feature. So there is a steps there. So first one, click on the formula tab. Second one, click on auto sum. Third is select the function to be used from the list. Now Excel automatically use the chosen function to choose range of the data. The variety of data selected is the entire row or column in which data has been entered. You can change by passing the shift key and moving with the arrow keys. Without release the shift key when the rearrange is selected. Press the enter key. Excel will complete and accepted the result. सो अभी हम लोगों ने मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा और उसके बारे में जानेंगे। उसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिले हैं, जैसे ABS, तो रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू। इसके बाद साइन, इसमें प्लस और माइनस के साइंस होते हैं। इसके बाद GCD होते हैं, इट मीन की ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर आएंगे। LCM, इट मीन की रिटर्न द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये आते हैं। इसके बाद बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जो कि सम होते हैं, ये आपको जोड़ने के लिए होते हैं। प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, इसमें आपको प्रोडक्ट के नंबर को लिस्ट मिलते हैं। इसके बाद पावर होता है, तो इसमें आपके पावर्स मिलते हैं। इसके बाद स्क्वायर रूट मिलते हैं, वो आपके स्क्वायर रूट को बताएंगे। इट मीन की बहुत सारी वो चीजें हमको देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद ऑटो सम, इसमें एक फंक्शन आता है ऑटो सम का। तो ऑटो सम के द्वारा हम लोग किसी भी फॉर्मूले को या किसी भी इंटीजर को आसानी से जोड़ सकते हैं। इट मीन अगर हमें 2 और 2 को प्लस करना है तो हम अपने इस डाटा को आसानी से ऑटो सम के थ्रू जोड़ सकते हैं। तो ऑटो सम हम देख सकते हैं कि अगर ऑटो सम का फॉर्मूला आता है तो 2 और 2 को प्लस करना है, तो वहां पर हमें इस ऑटो सम फॉर्मूले को यूज करेंगे। इसके बाद हम कितना हो डाटा इसमें एंट्री करेंगे तो वो ऑटोमेटिक उस डाटा को एंटर करके और आसानी से वो जोड़ता जाएगा। इट मीन फिर हमें वो फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको स्टेप्स को फॉलो करने के लिए मैंने आपको बुक में दिखाया था कैसे हम ऑटो सम के फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो एक्सेल आपको ये फैसिलिटी देता है कि हम लोग किसी भी फॉर्मूले को आसानी से ऑटो सम का यूज कर सकते हैं। तो बिना झिझक के, बिना कोई प्रॉब्लम के हमारे सारे फॉर्मूले और हमारे सारे डाटा आराम से इसमें इंटर होते जाएंगे। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में जानेंगे एक्सेल के और फंक्शंस के बारे में। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा इसको आप आराम से सीखिए। इफ एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क मी, तो आप मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं। तो अब ये हमारा क्लास यहीं तक खत्म होता है। तो आज के लिए धन्यवाद।